We are doing today's GFG problem of the day. Basically, it was yesterday's because, yeah, so time is, you can see 3 a.m. in the morning. But yeah, yesterday's problem, longest subtree sum in the tree. This is a very good problem. Like based on the trees, it can be your, starting point for DP on trees. Because, yeah, I told the topic, that's the topic under which this problem comes. So you have been given a binary tree and tasked to find a subtree with a maximum sum of the tree and return its sum. So basically, you have to find such a subtree which has the maximum sum. So can you tell me what is the answer for this? Actually, a good thing when the nodes of the tree are all positive, you don't have to think about anything. You just return the complete sum of the tree. The good thing it is like the interest. It becomes interesting when when some of the nodes are not positive, some of the nodes are negative. Like in this case, this is the second example, and some of the nodes are. So first example, I don't think we need to yeah, we can discuss if we are looking for the solution approach, but for essence of the problem, I will like to tell you that when the some of the some nodes are negative, so you won't consider that. For example, if you take complete sum of the tree, it would be something like, what can you just tell me? So -6 is there now, so this will be actually this part. Okay, so how you can find the sum of tree, basically this, and this tells you like how to think also. The if someone says you to tell the sum of the tree, you will say ki, okay, first let's calculate this part answer. Like this is 4, this is 5, which becomes 9. 9 minus 2 is 7. So 7 is coming from the left half, and let's say what is coming from the right half. 3. Okay, so -6 is coming, and -2, it becomes -4. Then on the second level it comes with +3, so -4 plus 3 becomes -1. Okay, and this is your one standing on the top. So one will ask from left side की sum below this कितना है, पूरा 7 है, I think, है ना, 9 minus 2. यहाँ से sum कितना है, 3 plus 2 which is 5 होता है, -6 -1 है, तो टोटल का sum कितना हुआ, 7 हुआ. यू कैन सी टोटल का सम 7 हुआ. इस पार्ट का भी सम केवल 7 था, और इस पार्ट का सम नेगेटिव में था, -1 था. तो ये 1 और -1 ने कैंसिल करा, तो या तो टोटल का सम लो, दैट इज ऑल्सो 7, या तो केवल इसका सम लो, दैट इज ऑल्सो 7. और केवल लीव्स का सम लो, तो यहाँ पे हमें सम बता सकते हैं हम. लीफ का सम 4 है, इस लीफ का -5 है, इस लीफ का -6 है, जो कि मतलब लीफ का सम तो वही होती है जो उसकी वैल्यू होती है. इज इट क्लियर यार? इट शुड बी लाइक इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड की लीफ में तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं. तो इसका जो सब ट्री है, ये अपने आप में ही सब ट्री है. ठीक है, इसका खुद का सब ट्री बस ये लीफ नोड ही है. -2 की सब ट्री की बात करें तो एक तो ये नोड आती ही आती है, इसके चिल्ड्रंस भी आते हैं, और इसके चिल्ड्रंस के नीचे जितने भी चिल्ड्रंस है वो सब आएंगे, उनके सारे चिल्ड्रन जब तक वो लीफ तक नहीं. तो लाइक गुड थिंग इसकी इसके नीचे बस एक ही लेवल है, तो हमें बस इन दोनों का और देखना है, और -2 का इस पूरे तीनों का सम यानी कि 7. बेसिकली तो आपको यही करना था. ठीक है, आंसर कैसे निकालेंगे हम, एक तो आप देख के बता सकते हो, और दूसरा चीज है जो अप्रोच हम लगाएंगे वो ये है कि इस ट्री की मदद से हम ये वाला ट्री बना देंगे. ये अपन मेरा सम ट्री है. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसे डीपी ऑन ट्रीज. बेसिकली इसके लिए हम पूरा सम ट्री बनाएंगे. सम ट्री वो होता है कि वेयर द नोड रिप्रेजेंट द कलेक्टिव सम ऑफ कंप्लीट सब ट्री. सो दिस 1 इज नॉट 1, दिस इज एक्चुअली 7, क्योंकि 7 रिप्रेजेंट की यार ये पूरा सम है मेरे पूरे नीचे तक का. ठीक है, 7 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट से जितना भी मेरा सब ट्री स्टार्ट हो रहा है, ये वाला सब ट्री -2 4 2 5, तो इसका सम 7 है. ठीक है, 4 5 6 2 के लिए तो मेरे को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है. आई टोल्ड यू कि लीफ के लिए जो उनकी वैल्यू है वही सम है. पर 3 वाले सब ट्री के लिए अब ये अपना सब ट्री का आंसर निकालेगा. तो जैसे कि हमने निकाला था कि वैल्यू -1 आ रही थी, तो -1 क्यों रखा है, क्योंकि ये 3 का पूरे सब ट्री का सम है, तो दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड ओवर हियर, एंड ये पूरे सब ट्री का सम है. तो अगर मेरे को ये पता चल जाए किसी तरह से सब ट्रीज का पूरा सब डीप मतलब सम वाला ट्री पता चल जाए, तो मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू देख सकता हूँ कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है. एंड द थिंग अबाउट दिस इज कि इसमें एक ही वैल्यू है 7 7, जो कि मैक्सिमम है. बट सम केसेस ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आ रही हो मान लो 10, यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही हो -5, और कंप्लीट वैल्यू बन जाए आपकी समथिंग लाइक, यहाँ पे आपका 1 प्रेजेंट होता या 2 प्रेजेंट होता. ठीक है, तो मान लो अभी के केस में इन दोनों का सम तो 5 है, तो अगर 2 प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे 7 बन जाएगा वापस से. ठीक है, 1 प्रेजेंट होता तो यहाँ पे 6 बन जाता. तो आपका मैक्सिमम आंसर कहाँ से आया, इससे आया, आपके केवल लेफ्ट वाले सब ट्री से आंसर आया मैक्सिमम. तो दैट्स व्हाई सम, और ये सिंपल है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना. इस 4 को ही अगर मैं 7 कर दूं, या फिर बस 2 से ही बढ़ाना था, है ना, आई थिंक 2 नहीं, आई थिंक 3 से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 7, हाँ 3 से बढ़ाना पड़ेगा. तो यहाँ तक का सम देख लो, तो 7 जो भी करोगे तुम्हारा
मिल जाएगा तुम्हें, लाइक 5 5 10 होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई कि अगर आपका ऐसा कुछ बन रहा होता और -5 ये बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा बेसिकली, 1 भी नहीं, इसको -2 करना पड़ेगा बेसिकली, तो ये -5 बन जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब नेगेटिव नंबर आ रहे हो तो हमें ये वाला पार्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि कम, मतलब करंटली आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट कि ऑब्वियसली कि कंप्लीट सम ट्री का जो सम है वो कभी कभार तुम्हारा आंसर नहीं होगा। तुम्हारा आंसर केवल छोटे वाले पार्ट से भी आ सकता है, केवल आंसर तुम्हारा केवल लीफ नोड से भी आ सकता है। मान लो सारी नोड्स नेगेटिव होती, केवल एक लीफ नोड बहुत बड़ी पॉजिटिव होती, तो वो आंसर होता मेरा। तो डीपी ऑन सब ट्रीज क्यों बोला, क्योंकि मैंने डीपी ऑन ट्रीज क्यों बोला, अब यही हम करेंगे हर नोड के लिए, उसके पूरे सब ट्री का सम कैलकुलेट करेंगे और स्टोर करेंगे। दैट इज द होल व्हिच यू हैव टू डू इन दिस प्रॉब्लम। प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम। So that's why this can be considered as the starting point for the DP on subtrees. तो आपको नोड ओनली दे रखा है, तो एक फंक्शन में कॉल कर दूंगा, सॉल्यूशन नाम रख सकते हो इसका, डीएफएस नाम रख सकते हो। डीएफएस रखेंगे क्योंकि सच में हम डीएफएस कर रहे हैं, तो ऑन रूट पे कॉल कर देंगे और एक अपना डीपी एरे मेंटेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो क्या स्टोर कर रहा है, यू ऑल नो कि ये पूरा सम स्टोर कर रहा है इस पूरे सब ट्री का डीपी। इसका साइज क्या है अभी तक किसी को नहीं पता, साइज इसका क्या है। तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, या तो हम इसका साइज निकाल सकते हैं, या तो हम एक और चीज, साइज की जरूरत ना पड़े, हम मैपिंग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मैप ऑफ अ पर्टिकुलर नोड, नोड स्टार से इंट की मैपिंग कर दी हमने, तो एक नोड के नीचे उसका कितना सब ट्री का सम ऑफ सब ट्री, ठीक है। सब ट्री ये है हमारी मैपिंग, तो ये हमने मैप बना दिया इसका। तो इंट गोस टू, इसका नाम रख दिया हमने मैप, इसको मैं कमेंट को नीचे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है। तुम नोट्स वाला तब पता है कब करते हो, वेक्टर वाला तब करते हो, क्योंकि यार वो कॉम्पिटेटिव क्या होता है, क्योंकि उसमें पता है क्या होता है, तुम्हें नंबर ऑफ नोट्स तुम्हें गिवन होती है ना। तो 0 से n तुम मतलब बेसिकली तुम्हारी नोट्स होती हैं, तो वैसे उसमें वेक्टर बहुत आराम से काम आ जाता है। ऑब्वियसली ग्राफ में ज्यादा काम आता है वेक्टर, यहाँ पे नोड है तो नोड का मैपिंग बना सकते हैं हम, ठीक है। अब डीएफएस फंक्शन बना लेता हूँ सबसे पहले, और ये इंट टाइप का बनेगा। जनरली हमारा डीएफएस वॉइड होता है, पर यहाँ पे इंट है, ये कुछ रिटर्न भी करेगा। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अरे मैंने डिलीट कर दिया, आई थिंक वो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और आई थिंक वो वापस नहीं आ सकता, वो मैंने जो डिलीट किया आ गया। तो ये एग्जांपल मेरे को रखना है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ पूरा फंक्शन ही, ठीक है। मैपिंग मैंने स्टोर कर रखी है, डीएफएस पे मेरे को कॉल करना है। ये वाला पार्ट मतलब चलो बाद में देख लेंगे, पर ये वाला पार्ट सिंपल है, कोई बंदा मतलब देख के भी समझ सकता है कि मैक्सिमम निकाला जा रहा है। अगर कोई एक डीपी मेरे को मैपिंग मेरी अगर अच्छे से बन चुकी है, तो फिर ये पार्ट करना इज नॉट दैट नॉट दैट टफ। तो तुम्हें बस मैक्सिमम निकालना है इस पार्ट में। पर सबसे पहले है कि डीपी एरे फुलफिल कैसे करेंगे हम। तो यार वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो जस्ट हमारा नॉर्मल डीएफएस फंक्शन है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो डीएफएस में फटाफट करके दिखा दो, नॉड स्टार रूट। बट एक स्पेशल चीज है कि हम स्टोरिंग कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इफ अगर तुम्हारा नॉट रूट नल है, तो तुम रिटर्न कर दोगे 0। इसका क्या मतलब है, देखो ये इंट क्या रखा, और मैंने ये एग्जांपल बेसिकली ये दिखाने के लिए रखा है कि मतलब देखो इंट का डेटा टाइप मतलब क्या रिटर्न क्या कर रहा है डीएफएस फंक्शन। तो अगर तुम डीएफएस फंक्शन 7 पे कॉल करोगे ना, तो इसको रिटर्न करना चाहिए 7 के नीचे का सब ट्री सम। पर अभी तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि 1 आंसर हो, मतलब ये इसके पूरे नीचे का पूरा सब ट्री का सम आंसर हो। पर एक पॉसिबिलिटी तो है ना, तो वो हम रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करने के साथ साथ उसे डीबी में स्टोर करेंगे। पर एक्चुअली ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिटर्न क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसके लिए ना माइनस लेफ्ट पार्ट का आंसर लेफ्ट पार्ट पे कॉल कर सकें, और लेफ्ट पार्ट का आंसर स्टोर कर सकें, और फिर उसको रिटर्न कर सके अपने ऊपर वाले पार्ट के लिए, जो कि हम करते हैं ताकि हमें दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो जब हम सम निकालते हैं तो हम ये पूछते हैं ना, भाई लेफ्ट का आंसर दो मेरे को, राइट का आंसर दो। उस पर कॉलिंग करते हैं, वो मेरे को कुछ रिटर्न करता है। तो वॉइड थोड़ा रिटर्न करता है, वो अपना आंसर रिटर्न करता है मेरे को हमेशा, और मैं अपना आंसर उसमें एडिशन कर लेता हूँ। तो अब कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ रूट का लेफ्ट अगर नॉट नल है, रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो मैं बोलूंगा भाई जाओ डीएफएस ऑफ रूट के लेफ्ट पे और उसका आंसर लेके आओ। ऐसा नहीं है कि जाना है, उसका आंसर लेके आना भी है। तो आंसर लेके आएंगे तो स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो स्टोर कहाँ पे कराते हैं, अच्छा उससे पहले एक वैल्यू बना लेते हैं, मतलब सम इज इक्वल टू सम किससे इनिशियलाइज करेंगे हम, जो भी रूट पे तुम्हारा डेटा रखा हुआ है, क्योंकि पहले चीज तो ये आएगी ना। अगर मान लो मैं 1 के सब ट्री का सम निकाल रहा हूँ, तो 1 तो उसमें ऐड हो गई ना, 1 प्लस करेंगे जो भी करेंगे। -2 के सब ट्री का सम निकाल रहा हूँ, तो -2 + 7 + 5 ये होता है। तो -2 तो आएगा ना, +12 होगा नीचे की वजह से, वो तो चलो ठीक है लीफ की मदद से, पर -2 तो होगा। ये कर दिया, तो मैंने क्या करा, सम प्लस इक्वल टू डीएफएस ऑफ ये कर दो रूट का लेफ्ट, ठीक है।
या फिर तुम ये भी कह सकते थे कि मैपिंग ऑफ, नहीं मैपिंग नहीं कह सकते थे, तुम डीएफएस पे कॉल करोगे, ठीक है। और अब इसके बाद अगर तुम्हारा रूट का राइट एग्जिस्ट करता है तो हम कॉल कर देंगे कि सम प्लस इक्वल टू कर दो, तुम डीएफएस रूट के राइट पे कॉल कर देना, और जो भी वो तुम्हें रिटर्न करे वो तुम इसमें ऐड कर लेना, क्योंकि टोटल सम तुम्हारा वैसे आ जाएगा। अब तुम्हारा एक सम कैलकुलेट हो गया एक नोड के लिए, ठीक है। ये नोड कोई सी भी हो सकती है, ये 1 वाली हो सकती है, ये -2 वाली हो सकती है, पूरे सब ट्री का सम कैलकुलेट हो चुका है इस नोड के लिए। ये 7 वाली नोड भी हो सकती है, क्योंकि इसका आंसर केवल 7 होगा। तो हमें बस इसको स्टोर कराना है अपने। तो डीपी ऑफ दिस नोड जो कि रूट है के इज इक्वल टू, इसका सम स्टोर करा दिया मैंने, बस दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। ये एक नई एक्स्ट्रा लाइन, और रिटर्न तो करना ही है, रिटर्न करना भूल गए, क्योंकि रिटर्न भी तो करोगे ना अपना सम, ताकि दूसरे बंदे हेल्प ले सके। जैसे ये बंदा मांग रहा है इससे, तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो ये वापस जाके इसको मिल जाएगा, मतलब जैसे कि मैंने -2 पे सम कैलकुलेट करा और रिटर्न कर दिया 1 वाले को, जो कि हम हमेशा करते हैं। बट ओनली थिंग इज की स्टोर करते हैं, चलो वो भी बस एक वर्ड ऐड हुआ है, डीपी ऑफ रूट। जनरली जैसा हम कहते हैं कि डीपी कुछ नहीं होता, जो हम रिकर्सिव डीपी की बात करते हैं, मेमोराइजेशन की बात करते हैं, वो हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन होता है। प्लस एक लाइन होती है कि हम ये लिख देते हैं कि हमने उस आंसर को स्टोर कर लिया, तो जब भी इस आंसर की नीड पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। वैसे अब यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे कभी नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक बार ने हमने रिटर्न करा दिया और हमने स्टोर कर लिया, तो इसने ऊपर रिटर्न कर दिया, तो दोबारा हम इस पे कभी कॉल करेंगे नहीं 7 पे, ठीक है। एक बार 7 पे कॉल करा, कैलकुलेशन हुई, ऊपर रिटर्न हो गया, और फिर हमने बस स्टोर करना है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल बेसिक डीबी वाला क्वेश्चन है, बस स्टोरिंग करनी है। इसका ओवरलैपिंग ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स नहीं है, बस स्टोर करने के लिए हमने डीपी बनाया। अब इसको कमेंट कर देते हैं और हम चला के देखते हैं। सिंपल प्रॉब्लम था यार, काफ़ी हार्ड मार्क कर रखा है इन्होंने, पर इट्स नॉट एट ऑल हार्ड। तो सबमिट कर देते हैं। ये निकालना तो आता ही होगा ना, आई होप, कि एक नीचे के सब ट्री का सम कैसे निकालते हैं। बस एक नई चीज़ ऐड हो गई, मैप ऑफ डीपी बना लो और इसको डीपी में स्टोर कराते रहो, और फिर मैक्स ले लो डीपी का। ओके गाइज, ओके बाय।